Hello, good morning, students. Students, as you know, that we had started the lesson number 17, okay, which is the life in the northern mountains. Okay, so we had started this chapter yesterday. In this chapter, we discuss about the states that lie in the it's not the northern mountains, it's the northern plains. Okay, so we had discussed about the states that lie in the northern plains. Okay, so yesterday we discussed about the uh, two states, that is Punjab and Haryana. Okay, also we discussed that the northern plains is extended from west to east. Okay, as I told you that northern plain is from Punjab to Assam. Okay, Punjab is in the west and Assam is in the east. Okay, and we also studied that there are so many states that lie in the northern plains, and these states are Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar. After that, West Bengal. Okay, some parts of Assam and Delhi. Okay, these states lie in the northern plains. Okay, and also we studied that there are three rivers that flow through the northern plains, and these rivers are the Ganga, the Yamuna, and the Brahmaputra. These rivers flow in the northern plains. Okay, yesterday we discussed about two states, that is Punjab and Haryana. Okay, we had discussed about the culture of Punjab, the crops grew in Punjab, the language spoken in Punjab. Okay, and about the festivals, capital of Punjab. All these things we discussed yesterday, and after that we have discussed about the Haryana state. Okay, and same we discuss about the crops, festivals, languages, dresses, all these. Okay, so we already discussed about these things of these states. Okay, now today we are going to start the next states. We are going to discuss about the next states that lie in the northern plain of India. Okay, so let's start with the next states. We had discussed that about Punjab and Haryana. Hope you all understood. Okay, so now come to the next state, which is the state of Uttar Pradesh. Okay, so our next state is उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो आज हम किसके बारे में, कौन से स्टेट के बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में. ठीक है,
तो बोलता है उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, मोस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आप सभी को लग रहा होगा यहाँ पे पॉपुलस का मतलब फेमस, कि मशहूर स्टेट है, बट ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे पॉपुलस का मतलब है, अगर हिंदी में इसकी बात की जाए तो यहाँ पे पॉपुलस का मतलब है अधिक आबादी वाला। ठीक है, आबादी क्या होती है? आबादी होती है पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, क्योंकि इस स्टेट की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि उत्तर प्रदेश हमारी इंडिया की, सिर्फ उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को अगर कंपैरिजन किया जाए तो उत्तर प्रदेश जो है वो पाकिस्तान से भी बड़ा है। इस स्टेट की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि ये हमारी सिंगल स्टेट जो है ये पूरे पाकिस्तान से भी बड़ी है। ठीक है, तो ये क्या है? इंडिया की मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। ओके, एंड इट्स कैपिटल इज, कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की? इट्स कैपिटल इज लखनऊ। ठीक है, क्या है इसकी कैपिटल? लखनऊ। ठीक है, एंड द रिवर्स फ्लो इन उत्तर प्रदेश आर, कौन कौन से रिवर्स जो है यहाँ पे फ्लो करते हैं? दे आर द गंगा, गंगा रिवर है, द यमुना, यमुना, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज होती हैं सहायक नदियाँ। ठीक है, सहायक नदियाँ, मतलब गंगा और जमुना जो है उत्तर प्रदेश की दो मेन रिवर्स हैं। ठीक है ना, दीज आर द टू मेन रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। बट इन दोनों रिवर्स में से फिर उसके बाद छोटे छोटे रिवर्स और निकलते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, उन छोटे छोटे रिवर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है? इन दो रिवर्स से। ठीक है, एंड और उनके फिर अलग अलग नाम डाल दिए जाते हैं, और बट वो क्या होती हैं? इन दोनों की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से रिवर फ्लो करते हैं? एक तो गंगा और जमुना। ठीक है, ये दो तो मेन रिवर जो है वो फ्लो करते हैं, और उसके बाद इन दोनों रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, इन दोनों रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज जो है वो उत्तर प्रदेश में फ्लो करती हैं। ठीक है, अब गंगा और जमुना ये जो दो रिवर्स हैं, इसकी वजह से, इन दोनों रिवर्स की वजह से क्या है? वहाँ की जो सॉइल है वो क्या है? फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल है वहाँ की। ठीक है, क्या है? फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, ये आगे पॉपुलेशन की। अब उन्होंने कहा है क्रॉप्स, क्योंकि अगर सॉइल फर्टाइल है तो फिर वहाँ पे क्रॉप्स भी ज़्यादा होती होंगी। तो कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं? तो वहाँ पे है wheat and sugarcane, wheat and sugarcane in the west, in the west, ठीक है, and rice in the east। ओके, उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे व्हीट और शुगर केन जो है मेन क्रॉप है, एंड उत्तर प्रदेश का जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे राइस जो है वो क्या है? मेन क्रॉप है। ठीक है ना, क्योंकि हर कहीं पे 4 डायरेक्शंस, तो अब सपोज करो आप अगर अपने घर पे ही बैठे हो तो आपके भी 4 डायरेक्शंस हैं, है ना? तो उसी तरह से स्टेट की भी 4 डायरेक्शंस तो हैं। तो जो वेस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे व्हीट एंड शुगर केन पाया जाता है,
एंड जो ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे क्या है, राइस की क्रॉप जो है वो लगाई जाती है। ठीक है, उसके अलावा और कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे पाई जाती हैं, वहाँ पे पल्सेस दालें लगाई जाती हैं एंड ऑयल सीड्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ये भी जो है वहाँ पे क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स सॉरी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि द स्टेट हैज मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इस स्टेट में क्या है, बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। एग्रो बेस्ड का मतलब होता है वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पर बेस होती हैं। एग्रीकल्चर, एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड होती हैं। ठीक है, तो इस स्टेट में क्या है, बहुत सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो पाई जाती हैं। और वहाँ की जो फेमस इंडस्ट्री है, उत्तर प्रदेश की फेमस इंडस्ट्रीज जो है वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है जो वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, एक तो आ गई शुगर की एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो हैं वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। शुगर का तो सभी को पता है, चीनी, एंड टेक्सटाइल क्या होता है, कपड़ा। ठीक है, वहाँ पे कपड़ा भी जो है, कपड़े की भी इंडस्ट्री जो है वो फेमस इंडस्ट्री है। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ये टेक्सटाइल बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी क्या है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, ठीक है, बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं जिनकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और बहुत से ऐसी सिटीज़ हैं यहाँ जिनकी रिलीजियस इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना, जैसे अगर हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो वो आ गई लखनऊ एंड आगरा। ठीक है, क्या आ गई, लखनऊ एंड आगरा। अब जैसे आगरा में क्या है, आगरा में ताजमहल है ना, ताजमहल है, तो ये क्या है, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री है। यहाँ पे हम पूजा करने तो नहीं जाते, हम यहाँ पे घूमने जाते हैं क्योंकि ये पुराने टाइम में बनाया गया है ना, हिस्ट्री है, तो इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। वैसे ही अगर रिलीजियस इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस वाली सिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है मथुरा, इलाहाबाद एंड वाराणसी। है ना, यहाँ पे लोग घूमने भी जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, पूजा भी यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी क्या है, इन सिटीज़ की क्या है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है ना। मथुरा सिटी की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, इलाहाबाद की भी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और वाराणसी की भी क्या है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं और घूमने के साथ साथ यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए भी लोग जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आ गया कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज जो है, तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली जाती हैं, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, स्पीक वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ हिंदी एंड उर्दू। ठीक है, डायलेक्ट्स होते हैं बोली, ठीक है, भाषा। ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा हिंदी और उर्दू बोली जाती है, हिंदी और उर्दू, बट उनकी अपने स्टाइल में बोली जाती है। बोलते वो हिंदी ही है बट वो अपने स्टाइल में उसको मोल्ड करके बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी और उर्दू को वो अपने स्टाइल में बोलते हैं, होती तो वो हिंदी एंड उर्दू है बट उसको हम लोग जो नॉर्मल समझते हैं उनके बोलने का स्टाइल क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, डायलेक्ट को आप क्या स्टाइल भी बोल सकते हो कि वो अलग स्टाइल में बोलते हैं हिंदी और उर्दू को। ठीक है, एंड फेस्टिवल कौन कौन से वो सेलिब्रेट करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वहाँ पे होली,
मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, ठीक है, दशहरा मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, क्रिसमस मनाया जाता है, ठीक है। कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं वो लोग? होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं एंड एटसेट्रा, और भी बहुत से फेस्टिवल्स वो लोग मनाते हैं, ठीक है। समझ में आया उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं, किस डायरेक्शन में कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं, ठीक है। फिर वहाँ की कौन सी फेमस इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पे, और शुगर एंड टेक्सटाइल की जो है वो मेजर इंडस्ट्री है, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसकी अपनी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, कुछ सिटीज़ की रिलीजियस इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ताजमहल जो है वो आगरा में बहुत फेमस है, ठीक है। 7 वंडर्स में जो है ताजमहल का नाम आता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे सिचुएटेड है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के आगरा सिटी में, ठीक है। उसके बाद वो लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं? हिंदी एंड उर्दू, बट इन देयर ऑन स्टाइल, ऑन डायलेक्ट में, ठीक है। एंड दे सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक होली, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस एटसेट्रा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द उत्तर प्रदेश स्टेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट स्टेट which lies in the northern plain, and the next state is the state of Bihar, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? बिहार स्टेट की, ठीक है। ठीक है, अब जो बिहार है, बिहार जो है ये लाइज टूवर्ड द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ईस्ट में जो है बिहार लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है? उत्तर प्रदेश के ईस्ट में। कहाँ पे लाई करता है ये? उत्तर प्रदेश के ईस्ट में, ठीक है। एंड द स्टेट हैज़ बीन हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट, और ये स्टेट भी क्या है? हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन कौन से धर्म के लोग जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं? यहाँ पे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। और सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी इंडिया में एस्टेब्लिश हुई थी, वो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी थी? नालंदा यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। और वो किसकी यूनिवर्सिटी थी? वो बुद्धिस्ट ने वो यूनिवर्सिटी बनाई थी, ठीक है। और वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? वो यूनिवर्सिटी भी बिहार में है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, या वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी वो, ठीक है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी। तो वो कहाँ पे थी? वो बिहार में बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, यहाँ पे एक प्लेस है राजगीर, राजगीर, ठीक है। ये क्या है? राजगीर इज अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज फॉर किसके लिए? जैन्स के लिए। जो जैन धर्म के लोग हैं उनके लिए क्या है? राजगीर एक पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज होता है तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल, ठीक है ना। जैसे हम लोगों का जैसे हिंदू का आ गया वैष्णो देवी का टेम्पल, अमरनाथ श्राइन, ठीक है ना, और भी बहुत सारे, यहाँ पे हम लोग भगवान को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, दैट इज। तो जैन का जो पिलग्रिमेज है वो कहाँ पे है? राजगीर में है। कहाँ पे है? राजगीर में, ठीक है। और वो भी कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद यहाँ पे हरमंदिर साहिब भी है, ठीक है। एक और प्लेस है हरमंदिर, हर मंदिर साहिब, ठीक है, हरमंदिर साहिब, ठीक है। और ये कहाँ पे है? इन पटना, पटना सिटी है बिहार की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब क्या है? ये बर्थ प्लेस है गुरु
गोबिंद सिंह जी की, गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह की। गुरु गोबिंद सिंह कौन थे? सिखों के जो 10th गुरु थे, लास्ट गुरु जो थे, है ना, तो उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? पटना में, हरमंदिर साहिब में, ठीक है। तो हरमंदिर साहिब क्या है? वो गुरु गोबिंद सिंह जी की बर्थ प्लेस है। क्या है? उनकी बर्थ प्लेस है, ठीक है। उसके बाद अब बिहार की कैपिटल क्या है? बिहार की कैपिटल है पटना। क्या है बिहार की कैपिटल? पटना, जिसको पहले क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना, जिसको पुराने टाइम में क्या बोला जाता था? पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो बिहार है इसकी लैंड भी क्या है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है ना। यहाँ की लैंड भी क्या है? बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे कौन सी रिवर फ्लो करती है? गंगा, ठीक है। और फर्टाइल लैंड होने के की वजह से यहाँ पे कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो पाई जाती हैं? यहाँ पे क्रॉप्स पाई जाती हैं राइस, wheat, sugarcane and jute, ठीक है। कौन कौन सी क्रॉप्स पाई जाती है यहाँ पे? राइस पाया जाता है, व्हीट पाई जाती है, शुगरकेन पाई जाती है, जूट जो है यहाँ पे ग्रो की जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या है? मोस्टली फार्मर्स हैं। क्या है? फार्मर्स हैं, खेती का काम करते हैं वो। एंड यहाँ पे भी सेम लैंग्वेज बोली जाती है, हिंदी एंड उर्दू। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी एंड उर्दू, ठीक है। एंड फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट किए जाते हैं यहाँ पे? फेस्टिवल्स यहाँ पे दिवाली, यहाँ पे भी सेम उत्तर प्रदेश की तरह दिवाली, दशहरा, छठ पूजा का नाम सुना है ना सभी ने? तो वो छठ पूजा भी बिहार में ही की जाती है। छठ एंड ईद, ठीक है। ये क्या है? वहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। दिवाली, दशहरा, छठ एंड ईद, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बिहार स्टेट, ठीक है। बिहार की जो कैपिटल है उसका नाम है पटना, और पटना को एंशिएंट टाइम में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे, ये हो गया बिहार का। कम टू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब हम कौन सी स्टेट का करेंगे? वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल की स्टेट है, इसके साउथ में, इसका जो वेस्ट बंगाल का जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ पे गंगा रिवर क्या करती है? फ्लो करती है, ठीक है, साउदर्न पार्ट में, ठीक है। वहाँ पे क्या गंगा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से रिवर्स जो हैं इस स्टेट में फ्लो करती हैं? कौन कौन सी रिवर्स हैं वो मेन रिवर्स? द गंगा, ठीक है, गंगा रिवर है, हुगली रिवर है एंड दामोदर रिवर है, ठीक है। ये जो है ये वहाँ की वेस्ट बंगाल की मेन रिवर्स है, गंगा, हुगली एंड दामोदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं यहाँ की फेमस? राइस एंड जूट, ठीक है। कौन कौन सी? राइस एंड जूट, ठीक है। और ये जो जूट है ये किसके काम में आती है? जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स बनाए जाते हैं इससे, ठीक है। रोप्स बनाई जाती हैं, कारपेट्स बनाई जाती हैं, ठीक है, कारपेट्स एटसेट्रा, ठीक है। अब गनी बैग्स क्या होते हैं? गनी बैग्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बोरियां होती हैं जिनमें सब्जी वगैरह आती है ना, तो वो भी जूट की बनी हुई बोरियां होती हैं, ब्राउन ब्राउन कलर की जो होती हैं, है ना, तो उनको हम बोलते हैं गनी बैग्स। गनी बैग्स होते हैं बोरे, ठीक है।
उसके बाद रोप्स, रोप्स भी आप सभी ने देखी हैं, रस्सी जिसको हम बोलते हैं। एंड कारपेट्स होती हैं चटाई, ये भी जूट से बनाई जाती हैं। गन्नी बैग्स बनाए जाते हैं, रोप्स बनाई जाती हैं, कारपेट्स बनाई जाती हैं। किससे बनाई जाती हैं? जूट से। ठीक है, उसके बाद क्या है, जितनी भी ये जूट मिल्स हैं, क्योंकि जूट जो है वहाँ की क्रॉप है और उसकी मिल्स हैं, ठीक है ना। तो जो जो जूट मिल्स हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड हैं? ये ज़्यादातर सिचुएटेड हैं ऑन द बोथ साइड्स ऑफ हुगली रिवर। हुगली रिवर, हुगली रिवर के दोनों साइड पे क्या पाई जाती हैं? ये जूट मिल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? जूट मिल्स। जूट की जो मिल्स हैं, जहाँ पे जूट का सामान बनाया जाता है, ठीक है, वो कहाँ पे पाई जाती हैं? हुगली रिवर के साइड्स पे, ठीक है, किनारों पे। ठीक है, नो हम बात करेंगे कैपिटल की, कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ठीक है, क्या है वेस्ट बंगाल की कैपिटल? कोलकाता। ठीक है, तो जो कोलकाता है ये क्या है? सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडिया की सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी। ठीक है ना, इंडिया में दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? कोलकाता में पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट भी है, एन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट। सी पोर्ट होता है बंदरगाह भी है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है? ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है इंडिया का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कोलकाता क्या है? एक तो सेकंड बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सिटी है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सी पोर्ट है, एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है ये इंडिया का। क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेशनल आ गया जहाँ से फ्लाइट सिर्फ अपनी ही कंट्री में जाती हैं, जो नेशनल होगा। इंटरनेशनल मतलब यहाँ से जो फ्लाइट्स जाती हैं वो दूसरी कंट्रीज के लिए जाती हैं, इंटरनेशनल। ठीक है, यहाँ से दूसरी कंट्रीज के लिए फ्लाइट जाती हैं, दूसरी कंट्री से फ्लाइट आती हैं, तो ये क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है कोलकाता। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज की, लैंग्वेज की। तो यहाँ के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो बोलते हैं बंगाली। कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बंगाली। ठीक है, एंड दे आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस, ये लोग राइस खाने के शौकीन होते हैं, फिश खाने के शौकीन होते हैं, एंड स्वीट्स, स्वीट्स आ गई मिठाइयाँ, इनको मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। ठीक है, और इनको डांस भी पसंद है, डांस करना पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, आर्ट पसंद है। ठीक है, ठीक है, तो इनको डांस पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, आर्ट पसंद है। ठीक है, और इनका जो फेस्टिवल है, वेस्ट बंगाल का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है? वहाँ के लोग जो है कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा जो है ये बंगाल का मेन फेस्टिवल है। ठीक है, हिंदू फेस्टिवल है ये बंगाल का, और बड़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है। एंड मुस्लिम सेलिब्रेट ईद बाय विद ग्रेट जॉय। और मुस्लिम जो है वो कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? यहाँ पे ईद का फेस्टिवल जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? कोलकाता है, एंड दे स्पोक बंगाली लैंग्वेज, एंड दे आर फॉन्ड ऑफ राइस, फिश एंड स्वीट्स। इनको चावल खाना, फिश खाना, स्वीट खाना पसंद है। ठीक है, इनको डांस भी पसंद है, म्यूजिक भी पसंद है, और आर्ट भी पसंद है। ठीक है, और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो क्या है? दुर्गा पूजा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दुर्गा पूजा जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट की, दैट इज असम। ठीक है, असम की। तो कहते हैं असम स्टेट जो है, असम स्टेट जो है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 7 सिस्टर्स के बारे में, है ना, वो 7 स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा था।
कि जिनको 7 सिस्टर बोला जाता है। तो असम स्टेट जो है वो उन्हीं 7 स्टेट से क्या हुई है, घिरी हुई है, सराउंडेड है, ठीक है ना। कौन कौन से स्टेट्स हैं वो? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, असम भी क्या है, इन्हीं 7 सिस्टर का पार्ट है, ठीक है। बट ये क्या है, इन्हीं स्टेट से घिरा हुआ। 7 सिस्टर में असम भी आता है, बट हम बात ही असम की कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके सराउंडिंग में जो बाकी की बची हुई स्टेट्स हैं वो सारी जो है वो इसके सराउंडिंग में आ जाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जितनी भी स्टेट्स हैं ना, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ये बाकी के इंडिया से सिर्फ एक पतली सी स्ट्रिप के साथ जुड़ी हुई हैं, एक पतली सी स्ट्रिप है इनके बीच में, ठीक है। तो ये 7 स्टेट्स जो है ये ऐसे अलग आ जाती हैं, लेकिन एक छोटी सी स्ट्रिप, छोटी सी ऐसे कनेक्शन है इनके बीच में जो इनको क्या करता है, बाकी के इंडिया के साथ जोड़ता है। और उस स्ट्रिप को क्या बोला जाता है, उस स्ट्रिप को बोला जाता है चिकन्स नेक, ठीक है। वो इस शेप में है, जैसे चिकन की नेक होती है उस शेप में है वो स्ट्रिप, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स हैं 7 स्टेट्स, ये रेस्ट ऑफ इंडिया मतलब बाकी के इंडिया के साथ एक छोटी सी स्ट्रिप से जुड़ी हुई है, ठीक है ना, थोड़ा सा हिस्से से जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन कौन सी रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिवर फ्लो करती है और वो रिवर है द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो असम में फ्लो करती है, और इसी की वजह से जो है यहाँ की भी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। यहाँ की सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, यहाँ पे भी राइस एंड जूट ही पाए जाते हैं, राइस एंड जूट, ठीक है। राइस एंड जूट जो है यहाँ पे ग्रो किया जाता है। एंड असम की कैपिटल क्या है, असम के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो असम की कैपिटल क्या है, असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। क्या है असम की कैपिटल, दिसपुर। एंड असम की सबसे बिगेस्ट सिटी कौन सी है असम में,